Welcome all in ICT Eco4U channel. Myself Rupesh Nayak. Welcome you all in this channel. Standard 11 Economics, Chapter 8 Economic Reforms. I am very thankful to all those who are subscribed this channel, and for the new viewers, please go in Google and type www.icteco4u, then subscribe this channel and press on bell button so that you can find out so many notification of educational. Now also you can install my app for the Android version from the Google Play Store, that is ICT Eco for you, from which you can find out so many important links and so many PDF, so many videos of educational of standard 11, 12 and 1 to 12. Even there are some FISY consent are also there, so you can uh, get so many information about education. Also, if you have any doubt, any query regarding this installation, you can ask me or call me 9662532418 or mail on cknax78 on gmail.com, or you can comment box. You can comment me in my comment box. So let's start. आप सभी का स्वागत है आईसीटी कोफोरी चैनल में। मैं प्रवेश नायक आज स्टैंडर्ड 11 के अंदर इकोनॉमिक चैप्टर के अंदर 8 चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम आगे बढ़ाएंगे। 1 to 7 चैप्टर तक की हमने वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, हमने रिवीजन राउंड भी कर दिया है। 9 चैप्टर के बाद वी आर गोइंग टू कंडक्ट another 6, 7, 8, 9 chapters revision round, from where from in we can easily MCQ one sentence, section D, section E, we can easily do this type of work in revision round. So let's start chapter number 8. That उससे पहले थोड़ा सा अच्छा से कोट एपीजे अब्दुल कलाम का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करे। यानी अगर हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, तो हमें खुद बदलना पड़ेगा। अगर परसेंटेज कम आ रहे हैं, सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, तो थोड़ा हम उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से वीडियो 2-3 बार देखें और खुद को बदलना शुरू करें। 5 मिनट पढ़ रहे हो, 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ रहे हो, 15 मिनट, 20 मिनट लेक्चर वीडियो देख रहे हो, आधा घंटा तक देखो, 2-3 बार देखो। दैट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, देन यू कैन सक्सेस। Okay, now let's start. Next chapter is economic reforms, chapter number 8. In this chapter we are going to discuss about the objectives of the economic policy reforms since 1991, liberalization process of liberalization in India, privatization process of privatization in India, globalization process of globalization in India, foreign investment in India, types of foreign investment, institutional investment, foreign direct investment, nature of foreign direct investment, India's foreign trade policy, stage of India's foreign trade policy before globalization 1991 and after globalization 1991. Evaluation of the economic reforms, that is 8.13.1, favorable effect of the economics and unfavorable effect of economic reforms. Now begin with introduction. The planner of the independent India faced challenges of social and economic development. For this reason, they adopted the mixed type economic system, which laid greater emphasis upon the social pattern of the planning. However, by the 80s, however, by the 80s, many experts felt that the strategies of the planning development adopted by the country from 1947 to 1990 failed to attain the goals of economic growth and development, as they processed several state imposed regulations on economic activities. Besides, it is clearly 1990s the International Monetary Organization, guided by the developed nations of the world, imposed a precondition for the providing further monetary assistance to India, that India must reform its economic policies by the reducing excessive controls on economic functions. There were several balance of trade deficit, and India had to borrow foreign exchange from international institutions. Balance of trade is an accounting statement showing a country's expenditure on important income from the exports. Thus, since 1991, India reforms her economic policies, for which necessary to institutional and regulatory changes were also brought about. तो यहाँ पे जो इंडियन मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन ने 1947 से लेकर 1990
तक की जो इंडियन इकोनॉमी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे, इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को एडॉप्ट किया था, मगर उनके जो रिजल्ट मिक्स इकोनॉमी के 1947 से 1999 जो टारगेट किया गया था उसके हिसाब से आना चाहिए वो नहीं आया। तो गवर्नमेंट को अगर फाइनेंशियली हेल्प चाहिए कोई भी वर्ल्ड के अलग अलग एरिया के अंदर से, तो इंडियन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडीशन रखी हर एक डेवलप कंट्री के लिए, if they are not going to reform, they are not going to take help of finance। अगर उनको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो उनको अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो 100% वहाँ जो कंडीशन थी वैसी की वैसी रहेगी। सेकंड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देख रहे हुए, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो कुछ उनके पास इनकम होने के चांसेस रहते हैं, मगर यहाँ पे डेफिसिट चल रही है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो उनको अगर अच्छी तरह से रिजॉल्व करना है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 1991 के अंदर इंडिया को कंपलसरी अपनी इकोनॉमी के ट्रांजेक्शन को, इकोनॉमिक ट्रेड को अच्छी तरह से बढ़ावा देने के लिए जो बहुत से रिस्ट्रिक्शन रखे थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो हटाने को बोला, उनको रिफॉर्म करने को बोला। एंड देन आफ्टर 1991 इंडिया बिकम इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी चेंजेस वेर अडॉप्टेड। Now, objective of the economic policy reform since 1991. The changes brought about in economic policies since 1991 in order to step and change in the economic system of India from one which was highly regulated by the state to one which is more highly regulated by more market oriented, as well as reduce in the extent of the public sector in the mixed economy system came to be known as economic reforms. The objectives are here. First, increasingly encourage private and foreign investment in order to utilize Indian abundant। जो भारत के पास अगर फाइनेंस फॉरेन का कम पड़ रहा है तो उनको इंकरेज करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये रिफॉर्म्स करना पड़ रहा है। Abundant natural and human wealth in the process of economic development is more productive manner। यानी इकोनॉमिक अगर प्रोडक्टिव लेवल से करना है, उनकी प्रोसेस अच्छी तरह से करनी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द नेशंस रिसोर्स। ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द नेशंस रिफॉर्म्स, यानी अच्छी तरह से काफ़ी कार्यक्षमता से अपने कोई भी डेवलपमेंट हो उसकी वजह भी एक रिफॉर्म्स की हो सकती है। रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड चैनलाइज द रिसोर्स रिकवर फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस टुवर्ड्स इंक्रीजिंग यूटिलिटीज विच एनहांस वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी बाहर के लोग अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर करे या प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर भी करे, ताकि जो पीपल के वेलफेयर के बारे में जो गवर्नमेंट के पास एक्सेस अमाउंट नहीं है तो उनसे वो मिल सकते हैं। सेकंड, इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इनकम ऑफ द कंट्री। इंडिया के अंदर जो घरेलू इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, उनको बढ़ावा मिले, एक्सपोर्ट से उनकी इनकम अर्न कर सके, ये भी एक मकसद हो सकता है। इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवली बनाने का भी एक मकसद है। एंश्योर स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेडी यानी काफ़ी बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और इंडियन इकोनॉमी लॉन्ग रन तक ये बरकरार रखे, ये भी एक रिफॉर्म्स का मकसद था। इन ऑर्डर टू other fulfill this objective, system reforms in economic policy were initiated in 1991 which had three components, that is LPG, that is liberalization, privatization, globalization. There are three main importance factors are there for the reforms, that is liberalization, privatization and globalization. LPG, liberalization, privatization, globalization, main three components of that. Now next is first, liberalization. Liberalization means increase in the freedom of private enterprises by allowing greater play of market force and reduce the interference by the state. स्टेट जो इंटरफियरेंस करती थी उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये कि फ्रीडम ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज को फ्रीडम मिले, किसके लिए? अलाउिंग ग्रेटर प्ले मार्केट के अंदर
उनका भी कुछ रोल हो, उनको भी कुछ ना कुछ करने की फ्रीडम मिले, और रिड्यूस इंटरफेस बाय द स्टेट, स्टेट का इंटरफियरेंस थोड़ा कम हो जाए। इन अ वे रिलैक्सेसिंग पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन था उसको कम किया जाए। Increasing the role of the private sector and the market-oriented process in economic planning in place of state-regulated economic process in India's mixed economic system is called liberalization of Indian economy. Increasing the role of private sector का रोल बढ़े, एंड मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस यानी जो बाजार से जो डिसीजन लेते हैं उनका थोड़ा आगे बढ़े, तो इन प्लेस ऑफ स्टेट रेगुलेटर, स्टेट का जो रेगुलेशन है उसका जो कंट्रोल है थोड़ा कम कर दी। इकोनॉमिक प्रोसेस इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन फर्स्ट देयर आर ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द स्टेट इन इकोनॉमिक फंक्शंस। जो आर्थिक गतिविधियां हो रही थी उसके अंदर थोड़ा सा जो कंट्रोल था उनको कम करना एक प्रोसेस है। सेकंड, द रोल ऑफ द मार्केट फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है तो उनके फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से लिया जाएगा। द प्राइवेट सेक्टर्स इज सिस्टमेटिकली अलाउड टू एंटर इन द इन्वेस्टमेंट अराइज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत सारे रिजर्व रखे थे, वहां भी अब प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए मगर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये खुला रहा। This implies that the discriminations between the domestic and foreign enterprises by the state is gradually narrow down. For example, if the state has imposed restriction on cheaper imports and better quality to imports as well to enable sell the domestic goods, then such restriction are reduced. यानी जो कंट्रोल थे उनको रिड्यूस करने की बात हुई। फॉरेन एंटरप्राइज को भी न्योता मिला, डोमेस्टिक के अंदर भी जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग तरह के प्रोडक्शन है, उसके ऊपर अलग अलग तरह की जो पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट करने की बात लिबरलाइजेशन के अंदर हुई। अब प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की प्रोसेस क्या है? Liberalization in India was implemented as a gradual process. Initially, investment rules were simplified for domestic product and investors and subsequently for the foreign investor. Likewise, initially in the consumer goods sector was opened up for the investment by the foreign companies and the service sector and later on the financial sector. Thus, it was strategic liberalization प्रोसेस। यानी यहाँ पे दो बात की गई है कि फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और कौन से पॉइंट को अच्छी तरह से बैलेंस करना है, कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है। लिबरलाइजेशन जो इंडिया के अंदर हुआ उसके अंदर तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूस एंड इन्वेस्टर्स आर सब्सिक्वेंटली फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये जो घरेलू प्रोडक्ट है उनके अंदर कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना है वो ध्यान में लिया गया। Likewise, initially the consumer goods sector was opened up for the investment by the foreign company. जो consumer goods थे उनके अंदर इन्वेस्टर को, जो फॉरेन इन्वेस्टर को न्योता दिया गया। सर्विस सेक्टर एंड लेटर ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद सर्विस सेक्टर के अंदर सर्विस सेक्टर यानी बैंकिंग, LIC, ये सभी कम्युनिकेशन, ये सभी भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सम ऑफ द अदर कंपनी आर आल्सो देयर। तो ये एक स्ट्रेटजी बनेगी कि कहाँ पे बाहर के लोगों को यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है, ये बात की गई। उसके बाद हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ द ब्रिंगिंग अबाउट such economic changes which is also called economic reforms called by systematic change in the policy regulation. Some important regulatory changes which were brought about by the Indian legislative body were: first is 8.3.1 MRTP Act was replaced by Competition Act, Monopoly and Restrictive Trade Policy Act। यानी यहाँ पे MRTP Act जो था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी थी, वो उनको कैंसिल किया गया। उसके जगह MRTP की जगह this act was replaced MRTP and was aimed
at reducing the unhealthy competition among the enterprises। यानी जो MRTP एक्ट था उसको हटा दिया गया और एक्ट प्रिवेंट enterprises from the growing very big and established monopolies। competition एक्ट यानी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी नहीं मगर कंपटीशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई ताकि बिजनेस को बढ़ा मिले। FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय FEMA दैट इज फॉरेन exchange management act। the word regulatory was removed from FERA and replaced by the word management। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उनके जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी रेगुलेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आते तो रिस्ट्रिक्शन को वर्ड हटा दिया और मैनेजमेंट का वर्ड यूज किया है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 द एक्ट regulating foreign exchange earning and transactions of the enterprise। Foreign Exchange Management Act 1991 the act managing foreign exchange and earning and transaction of the enterprises instead of regulating those। यानी जो पहले FERA के अंदर रिस्ट्रिक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर था वो वर्ड के जगह FEMA यानी ट्रांजेक्शन जो करते उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं मगर उनको मैनेज करने की बात हुई। थर्ड, मेजर चेंजेस वर मेड इन द इंडस्ट्रीज पॉलिसी ऑफ विच वन नॉटवर्दी वाज ओपनिंग अप फॉर प्राइवेट सेक्टर the areas reserved for investment only by the public sector। Now only three sectors, very very important, now only three sectors are reserved for the public sector, namely, underline, very important, atomic here, namely atomic energy, minerals related, atomic energy and railway। ये तीन सेक्टर ही अब पब्लिक सेक्टर के पास है। बाकी जहां जहां पब्लिक सेक्टर का ही कंट्रोल था वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करने की जगह मिल गई है। अनदर नॉटवर्दी चेंजेस वाज raising the investment limit in the definition of small scale industries units that with high investment a small scale unit can adopt modernization। दूसरा चेंजेस ये भी हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो बढ़ाई गई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी मॉडर्न किया गया। The producer for the foreign investor became more investor friendly and in many sectors atomic licensing route was introduced for investment for foreign companies in India। foreign company वाले अगर यहाँ पे अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली इम्प्लीमेंटेशन किया गया। मैनी सेक्टर ऑटोमेटिक लाइसेंस रूट आर इंट्रोड्यूस। बहुत सारे जगह ऐसा ऑटोमेटिक जो रिस्ट्रिक्शन था लाइसेंसिंग पॉलिसी का वो थोड़ा कम किया है। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ के अंदर बिसाइड्स रिलैक्सेशन इन द इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिलैक्सेशन इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स वेर announced। foreign exchange was allowed to be converted at market rates instead of the earlier methods of convertibility only at the official rates and expenditure on subsidies was attempted to be reduced as part of the fiscal policy changes। फिजिकल पॉलिसी के अंदर जो भी चेंजेस आए उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी के अंदर रिलैक्सेशन कम था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो थोड़े कम किए गए, कंट्रोल में था उसको फ्री कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज जो पहले मार्केट पॉलिसी से कंप्लीट होता था यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारा 1 रुपीज़ की वैल्यू पहले ओपन मार्केट के अंदर यानी एक्सपेंडिचर सब्सिडी के अंदर नहीं होती थी वो अब foreign exchange was allowed to convert it at market rates instead of earlier method convertibility only the official rates। जो ऑफिशियल रेट से पहले डिसाइड होता था 1 रुपीज़ का वैल्यू वो अब कन्वर्टेड मार्केट रेट्स। ये भी अच्छी तरह से फिजिकल पॉलिसी जो चेंजेस हुई उसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ। नाउ प्राइवेटाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर हियर। नाउ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट ओनरशिप in publicly owned enterprise and increase the size of private sector। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि प्राइवेट ऑनरशिप जो पब्लिक के अंदर आने लगी है वो उनकी लेंथ भी बढ़ाती जाए, उनका जो साइज वो भी बढ़ाने का सोच रही है यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर वाले अब आ सकते हैं। ऐसी पॉलिसी
इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइवेटाइजेशन के अंदर आ रही है। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. Privatization means the process of transferring ownership of economic enterprises from public sector to private sector either partly or fully. ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्राइवेटाइजेशन की कि in India the public sector enterprise are allowed and owned and managed by the state. Privatization means process of transferring ownership of economic enterprises from public sector को private sector, यानी public sector के अंदर जिनकी ऑनरशिप थी उनको फुल्ली प्राइवेट सेक्टर को दी जाए या पार्टली प्राइवेट सेक्टर को दी जाए. ये जो पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया और प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया. प्राइवेटाइजेशन कैन बी टेक प्लेस इन इंडिया in following two ways. First, through disinvestment, and second, by reducing the number of area reserved through disinvestment, and second, by reducing the number of areas reserved for investment only by the public sector and opening them for investment by the private sector. And third point is by establishing public private partnership in business. यहाँ पे तीन तरह से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है. थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग हम बाद में देखेंगे, मगर डिसइन्वेस्टमेंट से प्रोसेस से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है. सेकंड, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द एरियाज वेयर द इन्वेस्टमेंट ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर का ही इन्वेस्टमेंट था, उनको उन एरिया को कम कर दिया जाए एंड ओपनिंग देम फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर के साथ उनका तालमेल हो सके. सेकंड, या फिर दोनों की पार्टनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक दोनों की होनी चाहिए. तीन तरह से हो सकती है. डिसइन्वेस्टमेंट से जो एरिया पब्लिक सेक्टर का था उनके अंदर प्राइवेट को न्योता देना और उनके साथ प्रोसेस करना, या फिर पार्टली प्राइवेट पब्लिक दोनों पार्टनरशिप हो जाए. ये तीन तरह से प्राइवेटाइजेशन हो सकते हैं. मीनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया. मीनिंग, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? तो डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अ प्रोसेस where the state reduce its share of investment. State reduce its share of investment, यानी जो राज्य सरकार है अपने जो इन्वेस्टमेंट करती है कोई भी सेक्टर के अंदर, कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, तो वो अपने शेयर, अपने हिस्से को इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर दे इन अ पब्लिक एंटरप्राइज. पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर जो राज्य सरकार या राज्य के इन्वेस्टमेंट जो होते थे वो उनके हिस्से का इन्वेस्टमेंट वो कम कर दे, और ड्रॉबैक इट्स इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली, या पूरा उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस ले ले बाय सेलिंग इट शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर. कैसे लेंगे? जो भी पैसे है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे और प्राइवेट सेक्टर के साथ वो अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे जो आते हैं प्राइवेट सेक्टर जो है वो शेयर परचेस करेंगे, और शेयर परचेस करने से उनके पास जो इनकम आएगी उससे वो अच्छी तरह से पैसे अर्न कर सकेंगे. तो ये एक पॉलिसी है प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट की. डिसइन्वेस्टमेंट के लिए राज्य सरकार है वो अपने पैसे कम कर देगी, या फुल्ली जो उसका पैसा है किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर वो पीछे वापस ले लेगी, मगर उनको शेयर बेचने पड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर को. प्राइवेट सेक्टर को वो पूरा पब्लिक सेक्टर के पास हैंड ओवर करने के लिए पैसे उनको देने पड़ेंगे. दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट. सेकंड, प्रोसेस. The following two aspects to be important to understand the process of disinvestment. First, a sell all the share of the state in a public enterprise of the private sector, which is called of complete disinvestment. दो तरह के disinvestment हो सकते हैं, पार्टली और फुल्ली. फुल्ली के अंदर sell all the share of the state in a public enterprise. पब्लिक एंटरप्राइज यानी जाहिर निगम के अंदर, जाहिर एंटरप्राइज के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती थी वो इन्वेस्टमेंट पूरा प्राइवेट सेक्टर अपने पूरे शेयर परचेस करके कर ले, तो वो फुल्ली इन्वेस्टमेंट, फुल्ली या कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट है. और सेकंड, सेल सम शेयर ऑफ द स्टेट इन पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल 29 और 49, व्हिच इज कॉल्ड पार्शियल इन डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट की 29 to 49% के अंदर अगर वो कुछ अपने शेयर को बेच रही है, अपने शेयर को वो पब्लिक सेक्टर के अंदर से प्राइवेट सेक्टर के अंदर शेयर कर रही है पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के पास जो 29 to 49% शेयर था वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता है, यानी वो शेयर परचेस करते हो, पार्टली डिसइन्वेस्टमेंट हुआ. इफ लेस देन 59% of share are transferred to the private sector,
देन इट इज कॉल्ड माइनर डिसइन्वेस्टमेंट। अगर 51% से कम प्राइवेट सेक्टर वाले शेयर परचेस करते हैं, पब्लिक सेक्टर को पैसे देते हैं शेयर परचेस करने के बाद, तो वो माइनर डिसइन्वेस्टमेंट है। एंड इफ मोर देन 51% शेयर ऑफ द ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर देन इट इज कॉल्ड मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दो तरह की बात हुई, 29 to 49 यानी लेस देन 51 that is called minor disinvestment and more than 51 that is called major disinvestment. Besides owning public enterprises, the state also had control over the certain areas of the investment. Certain area of the strategic importance and public utility service were not open for investment by the private sector. However, after privatization in 1991, most of their areas were declared open for the investment by the private sector. Banking sector, education sector, communication sector, transportation sector are now open for private and foreign investment. So these are the sector at which private sector can invest their money. That is called banking sector, education sector, communication. हम हर एक सेक्टर के अंदर देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर वाले भी है। एजुकेशन के अंदर हम देख सकते हैं पब्लिक स्कूल है, ग्रांटेड स्कूल, नॉन ग्रांटेड स्कूल भी है। कम्युनिकेशन के अंदर बात करें तो बीएसएनएल के साथ साथ एयरटेल, एयरलिंक, उसके बाद बहुत सारे जीटीपीएल, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी अपने वोडाफोन, ये सभी प्राइवेट कंपनी कम्युनिकेशन के अंदर है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी जो हमारी गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या रेलवे के साथ साथ प्राइवेट लग्जरी वाले भी है। तो दीस आर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर देयर। नाउ 8.5.3 नाउ ओनली द एरियाज of atomic energy, certain minerals related to atomic energies and railway are the reserved for the investment by the public sector। ये तीन ही सेक्टर ऐसे बचे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही है। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड एनर्जी, ये तीन सेक्टर के अंदर ही प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकेगी, बाकी के हर एक सेक्टर के अंदर वो आ सकेगी। After independence, there was a significant rise in the number of public sectors enterprise under the control government. After 1991, they didn't rise significantly. On March 31st, 1951, there were 5 public sector enterprises under central government, which became 233 in the 1990 and 217 in 2010 and were around 300 in 2015. The process of disinvestment from the old enterprise continue while the state may also set up new enterprises। यानी पहले जो गवर्नमेंट के 1951 की बात करें तो 1951 के अंदर 5 ही पब्लिक सेक्टर थे। उसके बाद 1990 के अंदर 233 पब्लिक सेक्टर हुए, 2010 के अंदर 217 और 2015 के अंदर 2010 के अंदर 2017 और 2015 के अंदर 300 पब्लिक सेक्टर हुए। दैट मीन्स जो पुराने पब्लिक सेक्टर थे उसके अंदर फॉरेन कंट्री, उसके साथ प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मगर गवर्नमेंट ने नए एंटरप्राइजेस धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। नाउ सेकंड, पब्लिक सेक्टर्स ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे होता है वो, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंडिया का रोल क्या है, इंडिया के अंदर कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ए कंट्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस with the rest of the world by increasing trade in goods and services, increasing movement of physical and financial capital, increasing exchange of technology and increasing investment between borders. It can be undertaken by the gradually decreasing the policy controls which serve as impediments of the foreign trade। यानी यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो कर लो दुनिया मुट्ठी में की बात हो रही है। हर एक कॉर्नर में हमारा बिजनेस बढ़े, हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ सके, एवरी कॉर्नर आर बिजनेस हब। So globalization is a process of increasing countries' economic integration with the rest of the world। वर्ल्ड के साथ अगर ग्लोबली हमें बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो अपने ट्रेड गुड सर्विस को बढ़ा सके, उससे हमारा फिजिकल, फाइनेंशियल और कैपिटल की जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। जो पहले रिस्ट्रिक्टिव था उससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1947 से लेकर 1919 तक जो एम्ड टारगेट जो हासिल नहीं कर पाए वो यहाँ पे हो सकेंगे, क्योंकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले सिर्फ डोमेस्टिक होता था अब इंटरनेशनली होगा। बाहर के बहुत सारे
ट्रेड, बिजनेस, सर्विस बढ़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजी बाहर जाएगी, फाइनेंस बाहर जाएगा, बाहर से यहाँ आ, ये सभी ग्लोबलाइजेशन के अंदर पॉसिबल था. सो import export, first point is that process of globalization in India. In 1991, Indian Monetary Fund, very important, International Monetary Fund, Indian International Monetary Fund, IMF, very important, International Monetary Fund declare several nations as highly in debt to it and thus imposed upon them to globalize and upgrade the technologies and growth of their nations. 1991 के अंदर IMF ने डिक्लेयर किया कि बहुत सारे डेवलप कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है, वो हाई, उसके ऊपर ज़्यादा कर्ज है और उनको कंपलसरी अपग्रेड होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के अंदर, अपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर. और दिस वाज द precondition before the continuing further loans to their nations. India was one of those, and accordingly, India had to relax its policy of granting protection to domestic industries from foreign competition. Foreign competition के अंदर टिकने के लिए उनको अपने पॉलिसी को चेंज करना पड़ा. इंडिया को 100% उनको रिलैक्सेशन, जो पॉलिसी कंट्रोल वाली पॉलिसी रिड्यूस करनी पड़ी, कंट्रोल हटा देना पड़ा, रिलैक्सेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ी. एंड thus India began globalizing by allowing more trade with other nations. The following mark as a systematic globalization process. First, import-export licensing policy were made up similar and easy. पहले जो import-export की पॉलिसी बहुत ही झंझट वाली थी, बहुत सारा उसके अंदर प्रोसीजर करनी पड़ती थी, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टिव था, तो वो सिंपल और इजी कर दी. India became member of World Trade Organization in 1995, which name abiding by its rules, reduction, regulations we have to follow. 1995 के अंदर इंडिया जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 के अंदर मेंबर बना, उनके हिसाब से उनके रूल्स और रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है. 1995 is a very important year for the MCQ one sentence and WTO full form, that is World Trade Organization. भारत 1995 के अंदर किसका मेंबर बना था? WTO का. और WTO का मेंबर भारत कब बना? तो 1995. very important. Introducing convertibility of the Indian rupee into other currency at market rate by gradually reduction conversion at the official rate. जो पहले ऑफिशियल रेट से हमारा इंडियन इकोनॉमी के 1 रुपीज की इवैल्यूएशन होती थी, अब उनको मार्केट रेट से इवैल्यूएशन किया गया, करने की बात हुई ग्लोबलाइजेशन के अंदर. वैल्यू ऑफ अवर कंट्री इज डिटरमिन्ड बाय द रेट, बाय द ट्रेड. ट्रेड के अंदर जो ओपन मार्केट है, मार्केट रेट के हिसाब से हमारा 1 रुपीज का इवैल्यूएशन हो गया होगा. वो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी हुई. There was sector-wise and systematic increase in the foreign direct investment (FDI). Foreign direct investment (FDI). Foreign direct investment systematically हुआ, वाइसली हुआ. बहुत सारे सेक्टर के अंदर बाहर वाले ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट अपनी पूंजी थी वो निवेश की. Investors and the producer in India were allowed to increase financial collaboration with their foreign consumptions counterparts. Investor and producer in India were allowed to increase finance collaboration. यानी जो इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर थे इंडिया के, उनके भी फाइनेंशियल कोलैबोरेशन अच्छी तरह से फॉरेन के साथ बढ़ने लगे. स्टेट बिकम मोर indifferent in policy matter between domestic and foreign investors and producers. That is undue protection for the Indian investors against foreign competition was lifted. Seventh, social and cultural ties with other nations were also encouraged, including relaxations by many nations in granting. यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो बाहर के कंट्री के साथ आदान प्रदान हुआ, थोड़ा जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी उनको थोड़ी फ्री कर दी गई, अच्छी तरह से हम अपने बिजनेस को बाहर की कंट्री के साथ करने लगे, तो सोशल और कल्चर टाइज तो थी, वो नेशन को इंकरेज करने लगी. बहुत सारे अच्छी बातें, उनके अच्छे कल्चर, उनके अच्छे जो वर्च्यूज थे, पॉइंट थे, वैल्यू थी, वो भी हमने इम्प्लीमेंट की. दिस इज द बिग इन्वेस्टमेंट, बिग एडवांटेजेस. Now, foreign investment in India. Foreign investment become an important components of the process of globalization. ग्लोबलाइजेशन के अंदर दो तरह की इन्वेस्टमेंट हुई, FII और FDI.
Under a relatively close and controlled economy, excessive foreign exchange need of Indian economy for the purpose of investment. Imports of essential goods and services, technology imports, etc., were met by borrowing from international organization and foreign गवर्नमेंट. यानी इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर के कंट्री को इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई, तो बाहर के कंट्री के अंदर से जो डॉलर पाउंड जो भी है उनको इंडिया के अंदर लाना है, इंडिया के डॉलर को बाहर ले जाना है, ये सब कुछ जो ऑर्गेनाइज करते थे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन गवर्नमेंट, तो उनका भी रोल इम्पोर्टेंट हुआ. एज देयर वर सेवरल कंट्रोल्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन या पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, तो देयर वर सेवरल कंट्रोल्स, उसके ऊपर थोड़े कंट्रोल भी रखे. वी हैड टू बाय मोर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अब्रॉड फॉर विच वी नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए वी हैड टू बाय मोर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, हम बाहर से टेक्नोलॉजी और गुड्स को परचेस करेंगे फ्रॉम अब्रॉड फॉर विच वी नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. Then after 1991, India allowed direct investment in certain areas in increased proportion. Such investment would decrease our dependence on foreign borrowing, as investment by efficient foreign companies will create employment, produce variety of goods, raise taxes, income, and bring technology. कंपनीज विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. यानी बहुत सारा ये बेनिफिट हुआ, इंडिया के अंदर टैक्सेस बढ़े, बड़ी इनकम बढ़ी, टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ इंडियन इकोनॉमी के अंदर लाए, उनसे बहुत सारी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट करती रही, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, वैरायटी मिली गुड्स के अंदर. ये सभी बेनिफिट हमें ग्लोबलाइजेशन से मिला. टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कौन से दो तरह की इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी के अंदर हुए हैं, तो दो तरह के. फर्स्ट है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड इज FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FII और FDI ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट के टाइप से सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है. गिव द फुल फॉर्म ऑफ FII और FDI. तो FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और FDI दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर वाले इंडिया के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट investment is FII, foreign institutional investment. Some foreign companies do not invest in plant machinery in another country, say India. They invest funds in financial institutional and bond stock share market in the another country. यानी बहुत सारे फंड, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, बॉन्ड, स्टॉक ऐसे जो शेयर रिलेटेड है उसके अंदर इंडिया के अंदर बाहर वाले अपने डॉलर और पाउंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर. वो डायरेक्ट मशीनरी प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, तो वो जो है वो FII है. FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहां बॉन्ड शेयर के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रखेगी. दे बाय सच स्टॉक्स फ्रॉम द बॉन्ड शेयर मार्केट इन दैट कंट्री, उसी कंट्री के अंदर से वो, यानी इंडिया के अंदर वो अपने इन्वेस्टमेंट करेगी शेयर के अंदर, डिबेंचर बॉन्ड के अंदर. सच इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. Very important, two names are there. Portfolio investment is also one of the name of foreign institutional investment, and such companies have to register in India as foreign institutional investment. अगर इंडिया के अंदर उनको अपने बॉन्ड और शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है पैसे को, तो उनको सबसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी को इंडिया के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा. दे कैन इन्वेस्ट ओनली अप टू अ लिमिट स्पेसिफाइड बाय रूल्स बनाए हैं, उतने ही वो अपने पैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर के अंदर या बॉन्ड के अंदर. दे हैव नो डायरेक्ट स्टेक इन द मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी. Hence, financial capital come to the home country through the stock market. स्टॉक मार्केट के अंदर से, यानी इस बॉन्ड और शेयर थ्रू इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो कैपिटल है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर आ सकता है, बाहर के कैपिटल को. This type of investment comes to the home country in a very short span of time when foreign companies buy share of home country in large amounts, and it can also leave the home country in an equally short span of the time when foreign companies sell the home country share in bulk.
शॉर्ट टाइम के अंदर बाहर के लोग जो अपने पैसे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर थ्रू कर सकते हैं कंपनी के अंदर। लार्ज अमाउंट अपने शेयर को परचेस करने के लिए भी कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं। कंट्री जो बाहर की है वो इंडियन इकोनॉमी के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे निवेश कर सकती है। हैंस फंड टेक अ फ्लाइट इन एंड आउट ऑफ कंट्री इजीली एंड दस दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की एंड अनस्टेबल काइंड ऑफ फॉरेन कैपिटल। ये जो एफआईआई था वो कंट्री के लिए थोड़ा खतरा भी था। फंड और फ्लाइट अप्स एंड डाउन होते तो इंडियन इकोनॉमी को भी वो जो रिस्क था वो उठाना पड़ता था। तो ये एफआईआई थोड़ा रिस्की था क्योंकि अगर ज़्यादा निवेश हो गया इंडिया के अंदर तो फॉरेन कंट्री अपना जो शेयर ज़्यादा करेगी तो उसको अपना मैनेजमेंट अपना कंट्रोल करने की भी दहशत हो सकती है। सेकंड है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। When the home country invites capital by allowing foreign investor or companies to produce and sell directly in India, such investment is called foreign direct investment. When the home country यानी इंडिया invites capital by allowing capital, उनकी पूंजी को अगर भारत उनके पैसे को इनवाइट करती है इस तरह से by allowing foreign investor or companies to produce एंड सेल डायरेक्टली, वो प्रोडक्शन के लिए या सेल के लिए डायरेक्टली इंडिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करवाएगी, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। वहां पे पैसे शेयर या बॉन्ड के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करेगी मगर फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर प्लांट्स, ब्रिंगिंग द टेक्नोलॉजीज, प्रोड्यूसिंग बाय द कोलैबोरेशन विद इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनी के साथ वो डायरेक्ट अपना प्लांट मशीनरी ही इंडिया के अंदर उनके पैसे से ला खड़ा कर देगी। तो ये हुआ एफडीआई। The companies either manage the entire business or have a say in management if they are collaborating partners। वो पूरे अपने प्लांट मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा भी कंट्रोल कर सकती है या फिर पार्टली कोलैबोरेट करके पार्टनर भी रह सकती है। तो ये हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई की बातें। नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, द नेचर ऑफ एफडीआई कैन बी स्टेटेड एज अंडर इट्स फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट and hence stable from the investment. Second, it brings machines, materials, wealth or home country. It brings new technology to the country. It brings different works culture along with it. It brings a different work culture along with it. तो उनके जो नेचर थे एफडीआई के तो इस तरह के, वो प्लांट भी ला सकती है, मशीनरी भी ला सकती है उसके अंदर, या अपने कल्चर को भी ला सकती है, डिफरेंट वर्क कल्चर को भी वो ला सकती है इंडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी को भी ला सकती है। दीज आर द मोर टू नेचर ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दिस पॉलिसी रेगुलेट्स इंडियाज ट्रेड विद अदर कंट्रीज। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑलवेज फेस्ड द फॉलोइंग चैलेंजेस। इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उनको बहुत सारे चैलेंजेस उठाने पड़े। नीड टू कंट्रोल सर्टेन इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम द कंपटीशन बाय फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स को इंडिया के अंदर लाने से पहले उनको अपनी जो डोमेस्टिक जो घरेलू प्रोडक्शन थी उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर के कमोडिटी को या कोई भी गुड्स को इंडिया के अंदर लाएंगे तो इनिशियली जो बाहर की प्रोडक्ट होगी क्वालिटेटिवली होगी, अच्छी होगी, तो उससे एक खतरा है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हमारे स्मॉल और डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने वाले जो प्रोड्यूसर है उनके ऊपर आमदनी का खतरा हो सकता है उनकी चीज ना ले। सेकंड, एंश्योर इनफ इंपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन्स, spare parts as well as resources to help increase domestic production and import substitutions। may be possible यहाँ पे ये बात भी हो सकती है कि उनको पूरा कंट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए तो मशीनरी इंपोर्ट करे, स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करे, और हमारे जो लेबर है, टेक्नीशियन है, वर्कर है, इंजीनियर है, उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करवाए। या इंपोर्ट सब्सिट्यूट, इंपोर्ट सब्सिट्यूट का मतलब बाहर की चीज पूरे जो लाते हैं हम डायरेक्ट गुड्स और कमोडिटीज, उसकी जगह उनकी सब्सिट्यूट इंपोर्ट की जाए, यानी वो बनाने का जो टेक्नोलॉजी है, वो प्लांट है, वो यहाँ इंडिया के अंदर लाए और वैसी चीज बनाए ताकि इंडियन जो लेबर है उनको आमदनी या बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड अनएसेंशियल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू सेव स्केयर फॉरेन एक्सचेंज। अगर अननेसेसरी इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रही है तो उनको हमें बैन करना पड़ेगा, उससे हमारा
फॉरेन एक्सचेंज सेव हो सकते हैं। यानी इंपोर्ट ही करते जाएंगे तो हमें पैसे डॉलर पाउंड में पे करने पड़ेंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है वही हम इंपोर्ट करेंगे, ये बात यहाँ पे आ रही है। सेकंड, इंकरेज एक्सपोर्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू पे नेसेसरी इंपोर्ट्स। नेसेसरी इंपोर्ट्स की इंपोर्ट करें मगर बढ़ावा दे एक्सपोर्ट का, ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें हमारी प्रोडक्शन को, हम बाहर बेचें ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, डॉलर और पाउंड में हम अर्निंग करें। ऐसी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई। मनी इंडियन गुड्स many Indian goods could not compete against the quality of foreign goods and hence increasing exports was challenges for the trade policy। जो फॉरेन गुड्स और सर्विसेज की कंपटीशन में इंडियन इकोनॉमी की जो गुड्स और प्रोडक्ट, गुड्स का और कमोडिटी का प्रोडक्शन है वो लो क्वालिटी का हो सकता है। क्वालिटी वाइज भी एक्सपोर्ट करते वक्त ये हमें चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी बात ध्यान में दी गई कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं उनका भी हम प्रमोशन करें, उनकी प्रोडक्शन को भी हम बाहर एक्सपोर्ट करें ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले जो वर्कर है उनको भी अच्छी तरह से बाहर जो हम बेचना चाहते हैं वो अच्छी तरह से उनका भी प्रोडक्शन हो, उनका भी प्रोडक्शन चले, वो अनएम्प्लॉयड ना हो जाए, तो उनका भी प्रमोट करना चाहिए हमें। द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोस डोमेस्टिक ट्रेड एज फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज। द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर ये भी चैलेंज है different from those the domestic trade as foreign trade involves foreign exchange। foreign exchange जो हमारा था वो डोमेस्टिक के अंदर से अगर हम कमाई करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनल ट्रेड से हमारी रुपी के जो इंक्रीज होने चाहिए वो रुपी ही इंक्रीज होंगे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं इंक्रीज होगा। तो हमें बाहर के साथ करना पड़ेगा, और बाहर के साथ अगर हम लेन देन करते हैं तो ये सभी डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनका कोई लॉस ना हो, नुकसान ना हो, वो भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड एंड amended from time to time to deal with the above challenges in the best possible manner। Second, stages of India's foreign trade। Let us understand India's foreign trade policy in two sections। First, foreign trade policy before globalization and after globalization। तो globalization से पहले हमारी foreign trade कैसी थी? So in the initial year after independence, India had to set up the administrative, economic and state functions in the interest of the nation। भारत के अंदर 1947 के बाद इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव को बैलेंस करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, उनके अंदर ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रखना पड़ता था। आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द फॉरेन रूल्स which was established after East India Company came to India for trade, India was not ready for many imports goods at the same time because of poverty and scarcity of the foreign exchange। India was compelled to regulate import, export were also limited। यानी जो 1947 से यानी 1947 तक तकरीबन 300 इयर्स तक जो एम्पायर रचा था ब्रिटिशर ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को और इंडियन इकोनॉमी को पूरी डिमोलिट कर दी थी, तो उसका एक्सपीरियंस से हम बाहर की इंपोर्ट के बारे में सोचते भी नहीं थे। इंडियन की चीज़ ही हम अपनाते थे, बहुत सारा दामदार हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ही था, मगर जो कंडीशन आई, पुअर्टी हुई, स्कैरसिटी हुई, तो हमने थोड़ा थोड़ा फिर रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। इंडिया एडोप्टेड अ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड स्टेट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग और हमारी मिक्स इकोनॉमी से हमने स्टार्ट किया। ग्लोबलाइजेशन से पहले की बात है। मिक्स इकोनॉमी यानी कैपिटलाइजेशन और सोशलिज्म दोनों के जो बेनिफिट लेना चाहती थी इंडियन इकोनॉमी, तो मार्केट और प्लान दोनों इकोनॉमी के अंदर से हम गुजर रहे थे। इंडिया स्टेट सेटिंग अप द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल, and in order to establish such a huge industries we had to import costly machinery, technology and spare parts। The scarcity of the foreign exchange emerged and restrictions were imposed on the imports of the consumer goods। और हमने ऐसा सोचा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी को अगर इंपोर्ट करना है तो इंडस्ट्रीज के लार्ज स्केल जो मशीनरी है, प्लांट है, टेक्नोलॉजी, उनको ही और उनके स्पेयर पार्ट को इंपोर्ट करें, और जो प्रोडक्शन करेंगे वो हमारे लेबर से करेंगे। उससे थोड़ा सा हमें इंडियन इकोनॉमी को पूरा बाहर की जो इंपोर्ट की गई ऊपर नहीं टिकना पड़ेगा, हम खुद यहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी से बनाएंगे।
तो रिस्ट्रिक्शन था, वो धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर इंपोर्ट करने का भी था। Hence, in the foreign trade policy in the initial year, emphasis was laid upon measure of the protection for the domestic industries against foreign company. फॉरेन कंपटीशन के अंदर इंडिया का मेन फोकस इंडियन इकोनॉमी का मैक्सिमम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए, वहाँ से हमारा इकोनॉमी चलना चाहिए। वेरियस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वेयर इम्पोज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस, यानी 1991 के पहले, ग्लोबलाइजेशन से पहले ऐसा ही इंटेंशन था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट रिड्यूस होने चाहिए, या इंपोर्ट इंस्टीट्यूशनल की बात हो रही थी बीच द then after it become totally later on along with the traditional item of the export like agricultural production, handicraft, lamps and jewelry. The export of non-traditional industrial goods were also promoted. ये भी बाद में धीरे धीरे एक्सपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, हैंडीक्राफ्ट के बारे में बहुत सारी बात हुई। Rates of exchange were officially determined and the rupee was devalued in order to increase export and reduce imports. Imports कम हुई, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से मार्केट के अंदर रुपीस की डिवैल्यूएशन हुई। बिफोर ग्लोबलाइजेशन विद devaluation, imports become costly, but since the items of imports were necessary for India's industrializations, there were no significant decline in imports. Imports decline जो की थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारा जो वैल्यू था, हमारे रुपीस की वैल्यू काफ़ी डिवैल्यूएट हो गई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर इंपोर्ट्स की बात कम हुई, एक्सपोर्ट की ज़्यादा हुई। इंपोर्ट बिल्स इंक्रीज एंड देयर वाज अ डेफिशिएट इन द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसके अंदर इंपोर्ट कम, इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट कम हो गई, इंपोर्ट ज़्यादा हो गई, मशीनरी प्लांट ज़्यादा लेने लगे, तो इंपोर्ट से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चलता रहा, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, तो उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएट हुई बैलेंस पेमेंट के अंदर। और पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज आल्सो एडॉप्टेड। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिसी ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट गुड्स, यानी बाहर से अगर पूरी हम जो प्रोडक्शन लाते हैं और डायरेक्ट उसका यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम बाहर से कोई ऐसी चीज़ लाए जिनसे हम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर सके, और जो डायरेक्ट यूज़ होती थी वो प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूशंस के अंदर हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की गई हुई प्रोड्यूस को यूज़ करें। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पॉलिसी, यानी बाहर की नहीं मगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही हम यूज़ करें उनके ऑप्शंस के अंदर। Thus, imports are reduced and replaced by the domestic goods. Now, India's foreign trade policy after globalization 1991 के बाद जो globalization हुआ उसके बाद इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी रही? तो आफ्टर 1991 इंडिया economic policy in India were reformed to enhance trade and investment. Foreign trade policy was made outward looking from the restrictive and inward looking one. India rupee was allowed to convert it into foreign currency at the market rates from the earlier official convertible. जो official rate से हमारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर रुपीस की इवैल्यूएशन होती थी, अब वो मार्केट रेट से हो रही है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडियन रुपी वॉज अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी। Then after official conversation, import-export licensing was made easy. Now strict licensing exists only for crude, edible oils and chemical fertilizer. Now strict licensing exists for only crude, edible oils and chemical fertilizer. उसके ऊपर ही strict licensing method रखी, बाकी licensing method import-export की easy कर दी। With promotional of FDI and privatization, foreign companies can now sell वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडिया। जो प्रमोशनल पॉलिसी एफडीआई के अंदर हुई उसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी बाहर की वैरायटी इंडिया के अंदर देखने को मिली। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडिया ट्रेड वाज नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड partner or new country increase and new trade policy aimed at increasing India's percentage share in the world trade. वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इंडिया के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा बढ़े, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के शेयर भी बढ़े, ये एक इम्प्लीमेंटेशन की गई। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ इन 1995। रिपीटेड 1995 के अंदर इंडिया डब्ल्यूटीओ का
मेंबर बने और ट्रेड पॉलिसी चेंज वेर मेड अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूटीओ और इंडिया की पॉलिसी डब्ल्यूटीओ के हिसाब से चली फिर फॉर एग्जांपल चेंज वेर मेड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स फॉर एग्रीकल्चर गुड्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर एंड सो ऑन। ये सभी रूल्स और रेगुलेशन के अंदर जो एग्रीकल्चर की गुड्स कितनी इंपोर्ट करनी कितना एक्सपोर्ट करना है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये सभी मेजरमेंट डब्ल्यूटीओ के रूल्स और रेगुलेशन से हुए। नाउ इवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। इवोल्यूशन के दो तरीके हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल के अंदर 10 पॉइंट है अनफेवरेबल के 10 पॉइंट है। तो फेवरेबल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे हमने पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हुए। अब उनके ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले हम उनके फेवरेबल इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर स्टार्टेड गेटिंग वैरायटी ऑफ गुड्स इंटरनेशनल क्वालिटी इजीली अवेलेबल। जो रिजनेबल प्राइस में बाहर की प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आने लगी तो जो वैरायटी मिली कंज्यूमर को गुड्स की, पहले सिर्फ डोमेस्टिक ही मिलती थी और ग्लोबलाइजेशन से बाहर की भी प्रोडक्ट आ रही है। सेकंड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज। जो पहले डेप्थ के अंदर था बहुत सारा कम हो रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इंडिया एक्सपोर्ट इंक्रीज उसके जो निकास थी उनकी निवेश थी वो भी बढ़ी इंडियन की। Along with the increase in FDI, the risk of the certain investment and the debt burden of the state for importing costly technology reduced। जो पहला हमारा बर्डन था इन्वेस्टमेंट का डेप्थ भी बहुत सारा बढ़ गया था। हमारे जो कर्ज थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। तो FDI वाले जो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे टेक्नोलॉजी से आए उनकी प्रोडक्शन मेथड आई तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर विच इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। आप देख सकते हो बैंकिंग के अंदर बहुत सारे प्राइवेट बैंक है। LIC के बाद बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी आई। कम्युनिकेशन के अंदर BSNL के बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनी वोडाफोन है लिंक एयरटेल ये सभी के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ और बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे वर्क करते नजर आ रहे हैं यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन बिकम मोर मोबाइल विद इन द नेशन बिटवीन द नेशन यानी जो लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की लिमिटेशंस थी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने की लिमिटेशन थी ड्यू टू लिमिटेशंस इन द मोबिलिटी ऑफ दिस फोर्थ फैक्टर। बहुत सारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो जियोग्राफिकल मूवमेंट करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे वो भी धीरे धीरे कर पा रहे हैं। अंडर एन एरा ऑफ टू मैनी रेगुलेशन करप्शन hurdles delay in the decision making and inflexibility in the administration has become the common features in policy. All these are found have a gradually reduced after reforms। जो बहुत सारे इकोनॉमिकल डिसीजन लेट लिए जाते थे इनफ्लेक्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारा करप्शन था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और अच्छी तरह से काफ़ी स्मूथली इंटरनेशनल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सर्टेन सेक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट इन ग्रोथ बट निग्लेक्टेड owing the scarcity of the capital and government regulations got an impetus with private sector's investment initiative। for example natural gas pipeline मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवे एंड सो ऑन। यानी बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जिसके पास कैपिटल नहीं थी स्कैर्सिटी ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे तो FDI और FI के प्राइवेटाइजेशन हुए प्राइवेट कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट करने लगी तो उससे उनके जो बाकी बचे थे स्कैर्सिटी कैपिटल से जो कम हो रही थी और उनका डेवलप नहीं हो रहा था वो डेवलप होने लगा। जैसे कि हम गैस की पाइपलाइन के अंदर मॉडर्नाइजेशन देख सकते हैं रेलवे के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हम मॉडर्न कर रहे हैं तो ये सभी पॉसिबल हुआ। शॉर्टेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिकम अ थिंग्स ऑफ पास्ट rather variety increase। जो फूड और गुड्स और सर्विस की जो स्कैर्सिटी शॉर्टेज थी इट्स अ पार्ट्स ऑफ पास्ट। ये अच्छी तरह से अब तो इंक्रीज हो रहा है सभी बाहर से हम जो भी इसके शॉर्टेज पड़ती इजीली हम मूव कर सकते हैं। सोशल कल्चर टाइज विद अदर नेशंस इम्प्रूव बाहर के सोशल कल्चर भी हमें मिले। नाउ सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आल्सो रेज सम सोशल concern in Indian economy. First is small and cottage industries not stay in the competition के अंदर टिकने के लिए स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी couldn't withstand competition from the multinational company। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने टिक नहीं पाई।
Globalization started along with the privatization. Before the Indian private sectors become inefficient, India companies started facing competition from the foreign companies and some Indian companies suffered a setback. बहुत सारी कंपनी बाहर के इन्वेस्टमेंट से, बाहर के प्राइवेटाइजेशन के जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हुए, तो इंडियन कंपनी को बहुत सारा सफर होना पड़ा, उनको बहुत सारा भुगतना पड़ा, सेटबैक भी हो गए, बहुत सारी कंपनी को ताला भी लग गए। सब्सिडीज पे रिड्यूस इन द मैनी सेक्टर्स, जो पहले सब्सिडी मिल रही थी वो सब्सिडी नहीं मिल रही है, इट बिकम एक्सपेंसिव। जो सर्विस जो सब्सिडी से रिड्यूस हो रही थी, 20% सब्सिडी यानी 100 रुपीज की कोई कॉमोडिटी वो 80 में मिल सकती है, सर्विस 80 मिल सकती है, मगर सर्विस के अंदर या कॉमोडिटी के अंदर जो सब्सिडी थी वो रिड्यूस हो गई, तो जो मिलती थी कॉमोडिटी हमें वो एक्सपेंसिव मिलने लगी है। सेकंड, एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड एट द देयर मार्केट रेट। ऑफिशियल रेट की जगह हम मार्केट रेट से हमारे वैल्यू रुपीस की कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सारी अप्स एंड डाउन पूरी इकोनॉमी को भुगतना पड़ रहा है। सम फॉरेन कंपनी स्टार्टेड सेलिंग देयर गुड्स एट अनडली लो प्राइस। काफी लो प्राइस के अंदर बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर आके अपने कॉमोडिटी को बेच रही है। एज ए रिजल्ट मैनी इंडियन कंपनी सेलिंग सिमिलर गुड्स रिसीव अ सेटबैक। तो बहुत सारी कंपनी इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी लो रेट में वो बेच रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर महंगा हुआ और उनके बिजनेस को स्टॉप किया, सेटबैक कर दिया है उन लोगों ने। एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंड सेल सच लो प्राइस। इतनी कम रेट में वो अपनी प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर नहीं मिल रही है, घर पे अगर कोई कॉमोडिटी 20 रुपीज़ के अंदर मिल रही है, तो 20 से कम वो बेच ही नहीं सकेंगे। अपना मुनाफा को छोड़ के भी वो 20 से कम में नहीं बेच सकेंगे। वहाँ अगर मल्टीनेशनल कंपनी 10 रुपीज़ में अपनी प्रोडक्ट को बेच रही है, तो दे आर गेटिंग वेरी सफर। इट इज कॉल्ड डंपिंग। व्हाट इज डंपिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डंपिंग का मतलब क्या? आपको फॉरेन कंपनी अगर इंडिया के अंदर लो रेट में अपनी प्राइस, जैसे मेड इन चाइना, चाइना की प्रोडक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी बिक रही है, उससे क्या होगा? डोमेस्टिक के जो प्रोड्यूसर होंगे उनको डायरेक्ट भुगतना पड़ेगा, उनके पास ऐसी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो वो 100% लॉस करेंगे। तो to cope with the speed of the privatization and globalization, the infrastructure facility like electricity, road are provide insufficient। जो बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन आ रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर के अंदर उनको न्योता दे रहे हैं, तो उनको जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड की, वो धीरे धीरे कम पड़ रही है, इनसफिशिएंट हो रही है। इन क्वालिटी इनइक्वालिटीज ऑफ इकोनॉमिक पावर इंक्रीज। इनइक्वालिटी भी हो रही है, बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारी जगह नहीं हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है इकोनॉमी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ लाइफस्टाइल गुड्स इंक्रीज अगेंस्ट द नेसेसिटीज। जो हमारी जीवन जरूरी है, जो प्रोडक्शन हमें चाहिए, नेसेसिटी है, वो नई इंपोर्ट हो रही है, उसकी जगह जो स्टाइल लाइफस्टाइल की गुड्स बहुत सारे जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, वो नेसेसिटी की जगह अननेसेसरी गुड्स, लाइफस्टाइल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन और सेल के अंदर नेसेसिटी के प्रोडक्शन कम हो रहे हैं। सम पीपल बिलीव दैट द सोशल कल्चर फाउंडेशन ऑफ इंडिया आर थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बाहर की संस्कृति बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, उसका हम अगर इमिटेशन करेंगे तो उनकी डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी हो सकती है। So this chapter ended over. These are the exercise questions that we are going with our revision round. We all are know that up to 5 chapter revision round is over. After 9 chapters completed, 6, 7, 8, 9 revision round is going to conduct, and we are discuss these all topics. What are the importance? How can we remember? How can we write glossary for you? These all are completed during this chapter, and I am thankful to all watching this video. Thanks a lot for watching this video till the end. Keep watching ICT Co for you channel for chapter number 9. आपको चैप्टर नंबर 9 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी मिल सकती है। जिन्होंने सब्सक्राइब की है चैनल, उनको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, मगर नहीं कि वो गूगल के ऊपर जाके www.ictco4u लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आपको भी अपने एजुकेशनल 11 और 12 के जो भी यहाँ से लेसन हम स्टार्ट करते हैं वो आपको घर तक मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल माई ICT Co for you on which we can also share this videos link so
that you can easily enjoy with this. And if you have any query regarding this chapter, you have to call me directly 9662532418, or you can share your ideas about that in comment box also, or you can share chickenx98@gmail.com. So this is very very important. Your comment are very necessary. So 9662532418 are my number, and you can also ask me whatever you query from this chapter. So I'm thankful to you. Thanks a lot. Thank you for the day. Have a nice day.